Good evening, everybody. I'm Dr. Amay Parekh. And first of all, a big thank you to everybody who's joining in. Big thank you to Pradeep sir, Tarun sir, Geetu ma'am, and Blessings Healings Hub for having me over. I'll later introduce myself. I am primarily a dentist based in Mumbai, India, but I had a keen passion to help people. And I was always interested in doing art since I was a child. So as I started exploring various spiritual sciences, I got introduced to, trying to combine Reiki with art. And that's how I decided to, understand more about how art can be used for healing ourselves. And I pursued further into a second master's in counseling psychology. And I did a postgraduate diploma in art therapy. So I also learned from various, people in the US and the UK on how art actually has been a modality to heal ourselves and how we can actually do a lot of healing of our body, mind and spirit through the power of art. And today I'm going to give you all a little glimpse into the power of art and art therapy. ठीक है, मैं इन बिटवीन में हिंदी में भी थोड़ा शिफ्ट करते रहूंगा, इंग्लिश हिंदी मिक्स करूंगा ताकि किसी को हिंदी समझ रहा है तो दैट इज आल्सो कंफर्टेबल. इंग्लिश मेजरली यूज करूंगा बट हिंदी बीच बीच में. सो बेसिकली हम लोग आर्ट जब हम भी कभी भी सोचते हैं तो हम लोग एक चीज सोचते हैं, आई जस्ट पुट इट ऑन द कैमरा. हम लोग सोचते हैं कि आर्ट ऐसा कुछ रहेगा, एकदम ऐसे एस्थेटिक रहेगा, कुछ बहुत ही अच्छा रहेगा, ओके कुछ एकदम ऐसे ब्यूटीफुल रहेगा. हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आर्ट ऐसा कुछ रहेगा. यस और नो? कितने लोग सोचते हैं कि आर्ट ऐसा ही कुछ रहेगा? आपके पास चैट बॉक्स है, आप चैट में भी बता सकते हैं. सर आप मुझे स्पॉटलाइट कर सकते हैं या फिर को होस्ट बना सकते हैं? हाँ, ओके ओके. बट एक्चुअली आर्ट हैज अ लॉट ऑफ एबिलिटी to help ourselves and to heal ourselves. So जब आर्ट थेरेपी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आर्ट थेरेपी is much more than just using art to create beautiful things. Art therapy is actually using art as a power of expression. जो हम लोग जैसे हम लोग राइटिंग करते हैं, हम लोग लिखते हैं, all of it comes from a subconscious mind because it directly is some image that is being processed into a word and written on the paper. सेम वे जब हम लोग आर्ट थेरेपी यूज करते हैं तो आर्ट इज बेसिकली समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस माइंड. इट इज कमिंग थ्रू आवर मेमोरीज, थ्रू आवर फीलिंग्स, एंड वहां से हम लोग पेपर पे डाल सकते हैं. तो यूजिंग आर्ट एज अ मीडियम मतलब हम लोग आर्ट के मटेरियल्स यूज कर सकते हैं. हम पेपर, पेन, इवन जस्ट आपके पास एक पेपर और पेन रहेगा, टिश्यू पेपर और पेन रहेगा तो भी यू कैन स्टार्ट डूइंग आर्ट थेरेपी. बेस्ट है, इसमें कोई आर्ट स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड है. आपने कभी भी स्कूल के बाद आर्ट नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. द होल थिंग इज व्हेन वी थिंक ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, जैसे हम लोग कभी कोई छोटे बच्चे को देखते हैं तो व्हेनेवर वी लुक एट अ स्मॉल चाइल्ड वी ऑलवेज फील के उनको क्रेयॉन्स भी दे दिया तो दे एंजॉय सो मच. ऐसे कुछ भी पेपर पे सिर्फ ड्राइंग ऐसे लाइंस भी करेंगे, स्टिल दे फील सो हैप्पी. सो द सेम वे जब हम लोग आर्ट थेरेपी कर रहे हैं, हम लोग एक तरह से एक छोटे बच्चे बन रहे हैं. वी लेट आवर इनर चाइल्ड आउट एंड वी एक्सप्रेस व्हाट वी आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड. जो एक्चुअली हमारी मेमोरीज है, जो हमारी फीलिंग्स है, जो सप्रेस रहती है, all of this can be actually released through the medium of art, and we can help improve our energy systems, our emotions, our feelings, even overcome bad memories. Art therapy has been used not only for children, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, but बड़ों के लिए भी यूज हो सकता है, and it is quite commonly used now even in our country, in India. In India, it is still recognized only as one of the treatment modalities, but in the US and the UK, art therapy actually 3 साल का एक डिग्री प्रोग्राम रहता है जहां आपको इन डिटेल साइकोलॉजी के साथ आर्ट थेरेपी सिखाया जाता है. So I have done training of 1.5 year for this. I have not done a 3-year program, but I have been working with several people from the US and the UK, and plus under Pradeep sir's guidance, of course, whatever modalities I have learned, हम लोग ने I have tried to mix the two. So I use art therapy very commonly with myself and my clients, and we help release negative emotions, past hurt जो भी रहता है, and जैसे negativity निकल जाता है, we allow ourselves to create something much more positive. We can also combine, like I said, with other modalities. जैसे अगर प्राणिक healing कर रहे हैं तो उधर भी we use colors, right? We use color therapy, we use color pranas. So visualization, NLP, art therapy, actually all of this are very, very similar because ultimately we are
always creating images in our mind. हम लोग जब picture create करते हैं, whenever we think of something, we create pictures in our mind, and our mind understands that when feelings get added to it, that is when what Sir says that it becomes an imagination, and our mind does not understand the difference between reality and imagination. So once we start putting something onto the paper, this is our exact objective. अभी आर्ट थेरेपी कौन कर सकता है और कब कर सकता है? आर्ट थेरेपी इज एक्चुअली समथिंग दैट शुड बी डन ओनली बाय अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, because in other countries it is actually used for diagnosis of mental health issues, of learning disabilities. ऐसा कोई भी प्रॉब्लम रहा तो आर्ट थेरेपिस्ट इज ट्रेन्ड, आपके ड्राइंग से, आपके लाइन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चल रहा है. जैसे ग्राफोलॉजी में वी अंडरस्टैंड फ्रॉम राइटिंग एंड डूडल्स, in art therapy we understand from the various symbols that are created, the colors that are used, the type of artwork that is made. हम लोग अलग अलग चीजें यहाँ से समझ सकते हैं. Additionally, not diagnosis alone, हम लोग थेरेपी भी कर सकते हैं. In the sense, different procedures से आर्ट्स के थ्रू क्लाइंट कम बात करके भी काफी सारी एक्सपीरियंस से he can actually come out from this negative situation into a much more positive situation, and that is the objective of art therapy. If anyone has any questions, I'll quickly answer them in the chat box. For today, we are going to experience art therapy. So if you all have colors with you, आपके किसी के पास colors है तो please 2 मिनट जाके लेके आए. कोई भी color रहेगा चलेगा, अगर नहीं है तो पेन पेपर भी चलेगा. But we are going to experience the power of art today. I would highly recommend, अगर आपके पास colors है तो आप colors लेके आ जाइए. कोई भी color रहेगा, crayon, pencil colors, felt pens, mobile, कुछ भी चलेगा. Anything is fine. If anyone has any questions, I would be happy to answer. So basically what we do now in art therapy and what we are going to be today. Today we are going to understand, see, we all have, almost all of us have knowledge about the 7 chakra systems, right? Basic जो भी Reiki level 1 भी सीखे उनको 7 chakras के बारे में रहेगा. Now we are not going into detail, but we are going to understand only for our heart. जैसे हर कलर, हर कलर के पास एक वाइब्रेशन रहता है, वैसे हर चक्र के भी वाइब्रेशंस रहते हैं. So when we work with certain colors, certain feelings, certain emotions, we can actually trigger that chakra to work better or to heal itself. Yes, you can color and paint if yourself. Art therapy का मतलब पेंटिंग नहीं है. आर्ट थेरेपी में हम लोग पेंटिंग के मटेरियल्स यूज करते हैं एक्सप्रेशन के लिए. दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस. व्हाट पीपल थिंक कि हम लोग आर्ट थेरेपी में बहुत आर्ट बनाना है. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सर्टेन थिंग्स व्हिच यू विल अंडरस्टैंड कि आर्ट थेरेपी में क्या क्या फर्क रहता है. जैसे हम लोग ने ये सब देखा, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ वापस. जैसे ये देखा हम लोग ने, एक लोटस है. These are all art, okay? This is not art therapy. Now I show you some art therapy. जैसे ये सब art therapy है, ये आर्ट है. नाउ आई शो यू सम आर्ट थेरेपी. ये सब बहुत स्किल का काम है, बट आर्ट थेरेपी में ऐसा कुछ भी नहीं है. आर्ट थेरेपी में आप सिर्फ ऐसा कुछ एक रेनबो भी बना सकते हो एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन. जैसे आपको दिख रहा है अभी, दिस कैन बी एन आर्ट थेरेपी एक्सरसाइज. मैं आपको थोड़े 2-3 चीजें दिखा रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. जैसे ये यिन यांग का सिंबल रहता है, अगर आपने सुना है, बैलेंस का एक सिंबल है. इवन वी डू एक्सरसाइजेज विद दिस काइंड ऑफ सिंबल्स टू शो हाउ टू यूज आर्ट थेरेपी. अभी जहाँ पे ये है, मुझे दिखाना था अपना एक्सपांस, तो ये सिर्फ बहुत सारे कलर्स को ऐसे गिरा के एक स्काई जैसा बना है. दिस कुड बी कंप्लीटली फाइन एज एन आर्ट थेरेपी एक्सरसाइज. अभी जब हम लोग चक्रा सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो जैसे ये चक्रा के सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू एलिमेंट्स. क्या आपको दिख रहा है? सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डूइंग आर्ट थेरेपी. इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई आर्ट स्किल लगेगी या आपको कुछ अच्छा बनाना है. आपको जो शेप्स, कलर्स या जो भी आपको लगे, ऑल ऑफ दिस इज ओके, बिकॉज वी आर वर्किंग विद द कॉन्सेप्ट कि हमें कुछ इंडिकेशन है कि कुछ प्रॉब्लम है एंड वी वांट टू रीच टू सम रेजोल्यूशन. कभी कभी खास करके जैसे बच्चे रहते हैं या फिर बड़े भी रहते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट दे आर फीलिंग. सो जब वो आर्ट थेरेपी में वी होल्ड अ सेशन, हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं दैट दे कैन एक्चुअली एक्सप्रेस देमसेल्व्स, एंड देन सिटिंग विद द क्लाइंट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट इज द इनर सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम जो एक्चुअली अंदर माइंड में क्या चल रहा है,
एंड देन वहां से हम लोग हीलिंग कैसे कर सकते हैं. So today's experiment, we are going to understand the power of colors and we are going to experience a little art therapy for ourselves. So अगर आपके पास कलर्स है तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर कलर्स नहीं है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेन और पेपर के साथ भी ये कर सकते हो. आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि वो कलर आपके अंदर है या आपको वो कलर दिख रहा है. ओके, एवरीबडी कैन डू दिस मच. कैन आई गेट अ थम्स अप? मतलब सबको इतना अभी तक क्लियर है? Great. Okay. Any questions? Okay. One question has come. Art therapy और color choices में क्या link है? So basically every color generates certain emotion within us. Okay. जैसे some colors will mean good, some colors will mean bad. तो हम लोग आज happy colors को याद करने वाले हैं. I'm explaining what we have to do. Don't worry. Okay. अभी तक चालू ही नहीं किया. So every color can actually trigger certain emotion. जैसे हम लोग NLP में सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस या कुछ करते हैं. वी थिंक ऑफ अ कलर विच ब्रिंग्स अस कॉन्फिडेंस एंड देन वी जंप इनटू द कलर, फिलिंग आवरसेल्व्स विद दैट कलर. नाउ ऑल ऑफ दिस इज सिमिलर. वी मेक सर्टेन चॉइसेस ऑफ आवर कलर्स बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. जैसे अगर आपको कोई चीज में बहुत, जैसे आपने कभी एक व्हाइट शर्ट पहना था और आपके साथ बहुत अच्छा चीज हुआ, तो आपके लिए व्हाइट ऐसा हो सकता है कि व्हाइट इज अ लकी कलर फॉर यू, व्हाइट इज अ कलर ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू. या फिर जैसे मेरे लिए सन रिप्रेजेंट्स पावर एंड एनर्जी. मैं जब भी ऐसे डे टाइम में ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ तो मैं ऑलवेज कलर येलो को ओपन एनर्जी के लिए काउंट करता हूँ. सो इफ वी अंडरस्टैंड ऑल कलर्स विल हैव सर्टेन इमोशंस दैट दे ट्रिगर बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंसेस. सो अभी आपको क्या करना है कि वी आर गोइंग टू गो थ्रू सम एक्सरसाइज. इफ यू हैव कलर्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन टेक अ पेपर. जैसे मैं अभी दूसरा कैमरा स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, आपको ये कॉपी नहीं करना है. मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि हम लोग कैसे आर्ट थेरेपी एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं. कोई भी एक सिंपल सी आर्ट थेरेपी एक्सरसाइज हम हार्ट के लिए आज कंडक्ट करने वाले. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऑल ऑफ अस, हम लोग 1 मिनट आंख बंद करेंगे और आप कोई भी एक सीन याद करेंगे जहां आप बहुत खुश हुए थे, आपको बहुत अच्छा लगा था, यू आर फीलिंग रियली रियली हैप्पी. ओके, वंस यू फील दैट, आप एक कलर चूज करिए जो आपको वो कलर लगता है कि ये सीन में ये कलर बहुत अच्छा लगेगा. अगर आप पेंट कर रहे हैं हमारे, मतलब यू आर डूइंग इट अलोंग विथ मी, यू कैन फील टू चूज एनी कलर एंड आप साथ में भी कर सकते हैं. अगर आप नहीं कर रहे तो आप सिर्फ ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप ये कर रहे हो, तो भी एक्सरसाइज विल हैव रियली गुड इम्पैक्ट. ओके, इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? ओके, सब लोग के पास एक पेपर या कुछ है? किसी के पास मतलब एनीबॉडी हु इज, एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. एक थेरेपी है अलग टाइप की जो हम लोग प्रदीप सर सिखाते हैं. ओके, इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम बट दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी आर हियर जिनको काफी सारी चीजें पता है, तो इसके लिए उनके लिए ये स्टेटमेंट था. जस्ट okay, I'm going to be creating an art therapy exercise. So is anybody going to create along with me? कोई साथ में करने वाला है या फिर आप इमेजिन कर सकते? ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आपका जो पेपर रहता है, हम लोग ने एक थॉट हैप्पी मेमोरी का याद किया. अभी जब हम लोग ने ये याद किया है, ओके, तो we have to put our hand onto the paper. Okay, we have to put our hand onto the paper. Okay, and आपको आंख बंद करते ही वही सोचना है कि ये पेपर पे आपको ये कलर डालना है. ओके, एनी कलर विच यू फील, दैट इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. आपको नहीं पता चल रहा है तो यू कैन सिलेक्ट योर फेवरेट कलर ऑल्सो. ओके, बिकॉज आपका फेवरेट कलर तो आपको ऑलवेज हैप्पी करेगा ही. You can select your favorite color also, or whatever is the first thought that comes to you, that is coming from your intuition, आप पहले वो कलर यूज कर सकते हो. Okay, so once you have selected a color, just imagine that you want to fill this paper with this color of joy, with this color of hope. Okay, और एक लंबा सांस लीजिए और छोड़ दीजिए. पेपर पे ऐसे हाथ घुमाते हैं. The idea is we want to involve maximum senses. Okay, अगर आपके पास रूम में कैंडल्स है, आप कैंडल्स जला सकते हैं, कोई स्मेल
जला सकते हैं, आप एसी चालू करके रख सकते हैं. सो वी आर इन्वॉल्विंग एज मेनी सेंसेस एज पॉसिबल. अभी आपको म्यूजिक भी बज रहा है. कैन यू हियर द म्यूजिक? Can you hear the music? Can somebody just let me know? Right now we are keeping eyes open, close is okay. We just have to feel it. Okay? अभी हम लोग पेपर पे आएंगे. You can now open your eyes and आपके पास जो भी कलर है, जो भी मीडियम है, मीडियम मतलब आपके पास पेंसिल कलर है, क्रेयॉन है, वाटर कलर है, एक्रिलिक है, जो भी है, फेल्ट पेन है, कुछ नहीं है तो एक पेन एंड पेपर है, जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली अगर पानी और वाटर कलर रहते हैं तो हम लोग पेपर को वेट करते हैं. वाटर कलर पेंटिंग बच्चों के खास करके रहेंगे ही वाटर कलर्स, आप वो यूज कर सकते हो. अगर नहीं है तो यू कैन जस्ट यूज योर पेन एंड पेंसिल एंड दैट विल वर्क फाइन. ओके, मैं फेसबुक पे भी दिखाते रहूंगा बीच बीच में, बिकॉज इट इज लाइव ओवर देयर ऑल्सो, इट इज नॉट गेटिंग. ओके, तो एक पेपर लेके आपको उसको वेट करना है. अभी आपका जो भी फेवरेट कलर लिया है आपने, आपको वो कलर लेके हल्के से बैकग्राउंड में वो भरना है. अगर आपके पास बड़ा पेपर है तो आप भर सकते हैं, या फिर धीरे धीरे हल्के हल्के. यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड व्हाइल यू आर ब्रीदिंग आपको ब्रश अगर रहेगा तो ब्रश को मूव कर सकते हैं, आपके क्रेयॉन को मूव कर सकते हैं, लेकिन हर सांस के साथ आपको वो कलर से ये बैकग्राउंड को फिल करना है. स्लोली फिल द कलर. ओके, एकदम लाइट रखना है बैकग्राउंड, आपको ज्यादा डार्क नहीं करना है. अगर आपके पास पेन है तो आप सिर्फ 2-3 ऐसे लाइंस बना सकते हैं या एक बॉर्डर बना सकते हैं. जैसे एक बॉर्डर आप फ्रेम को देते हैं, एक फ्रेम के बॉर्डर को भी बना सकते हैं, सिर्फ बॉर्डर को, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे ये आर्टवर्क को एनर्जी क्लोज करनी है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द मोर वी यूज अ सर्टेन कलर, we are allowing that colors vibrations to enter our subconscious mind and generate the same emotion and the feeling that we want it to generate. शायद आपको 2 कलर लगे कि मुझे 2 कलर सूझ रहे हैं, तो आप 2 कलर भी यूज कर सकते हैं. देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग. इसमें आर्ट थेरेपी में देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग. मतलब आपने अगर सिर्फ 2-3 लाइन भी ड्रॉ की तो भी वो सही है, अगर आपने बहुत सारे कलर्स यूज किए तो भी सही है. ऐसे कुछ चीज गलत या सही नहीं होती है. वी जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग, व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग. दिस कैन बी यूज बाय एवरीबडी. ऐसा नहीं है कि ओनली adults can use or only children can use. Everybody can use. And this technique you can use what I'm teaching you. Okay, anytime that आपको लो लग रहा है या आपको थोड़ा इमोशनल हैवी लग रहा है, आपको ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिवली काम कर सकती है. ओके, सो वी आर जस्ट filling our background with the color of hope. Okay, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है आप उससे वो बैकग्राउंड फिल कर सकते हैं. Okay, अगर आपके पास कलर नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं. यू कैन जस्ट मेक अ बॉर्डर. एक 4 साइड से आप एक बॉर्डर बना सकते हैं, सो दैट व्हेन वी डू दिस एक्सरसाइज आप ड्राइंग करेंगे, आप कलरिंग नहीं करेंगे. आप सिर्फ एक बॉल पेन से भी कर सकते हैं. देयर इज नथिंग राइट, इट रिक्वायर्स अ कलर ओनली. ओके, विल टेक वेरी गुड. अगर 2 कलर यूज किए क्रेयॉन्स तो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड लाइट रखना, बिकॉज इस पे हमें एक्चुअली एक्सरसाइज करनी है. वी आर फर्स्ट क्रिएटिंग द बैकग्राउंड. जैसे हम लोग हीलिंग के वक्त हम लोग एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन करते हैं, सेम वे इन दिस केस बाय डूइंग दिस कलरिंग ऑफ द बैकग्राउंड वी आर बेसिकली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विच इज फिल्ड विद दैट पॉजिटिव एनर्जी. तो हम लोग एक कलर या 2 कलर सिलेक्ट करते हैं और उसको लाइट रखते हैं, ताकि वी आर अलाउिंग कि हम लोग जो भी अभी पेपर पे बनाएंगे हम उसको वो कलर से फिल करना चाहते हैं. वी वांट दैट एनर्जी टू बी प्रेजेंट इवन इन दैट आर्टवर्क. इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क. अभी तक क्लियर है सबको? इज एवरीबॉडी एबल टू फॉलो सो फार? I am repeating what we have done. We have taken any one paper. Okay, आपके पास जो भी है, क्रेयॉन्स है, पेंसिल कलर्स है, फेल्ट पेन्स है, वाटर कलर्स है, कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो. आपको क्या करना है, आईज क्लोज करनी है. पहले कोई भी एक अच्छी मेमोरी या हैप्पी मेमोरी आपको याद करनी है, या फिर कोई भी एक सिंबल जो आपको हैप्पी करता है
जैसे सन है, मुझे फॉर एग्जांपल सन से आई गेट हैप्पीनेस, तो उसका कलर क्या है? सो फॉर मी येलो एंड ऑरेंज इज अ कलर जहां से मुझे लगता है कि आई फील अ लॉट ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम इट। ओके, सो अगर आपको रियलाइज होगा दीज आर लोअर चक्र कलर, सो आई गेट अ लॉट ऑफ फिजिकल एनर्जी फ्रॉम देम। सो इट कुड बी रिप्रेजेंटिंग दोस कलर्स टू मी ऑल्सो। आपका भी कोई भी कलर हो सकता है, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन दैट, पर आपको एक बैकग्राउंड फिल करना है पहले। बैकग्राउंड से बेसिकली जैसे हम लोग रूम को क्लीनिंग करते हैं, वैसे हम लोग एक पेपर को भी एनर्जाइज कर रहे हैं। ओके, अभी क्या करना है? नाउ वी हैव टू क्लोज आवर आईज अगेन एंड वी हैव टू concentrate on our heart. Our heart is where all our emotions are stored. Okay, our heart is all where our emotions are majorly stored. And a lot of times हम लोग बोलते हैं heart break हो गया, we get a lot of hurt, because the heart chakra gets affected. Yes, you can imagine it for now. For this exercise, when you do it in the real time, you can use the colors also. For now, even if you're just imagining, it will work fine. So today we have want to basically work on the heart chakra. We are doing art therapy for ourselves, for our heart. So we are going to help our heart open up. हम लोग जो भी hurt हुआ है अभी तक, we are going to help our heart open up and feel much more better. So I want all of you to put your hands on your heart, ऐसे heart पे जैसे रखते हैं. Okay, eyes close करके we are going to think of one shape. Okay, which represents कि अगर आपका हार्ट बंद है और उसे खोलना है तो हम लोग कैसे खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सीड रहता है, वो सीड को आप अगर आप पानी देते हो, अगर आप उसको सन देते हो, सॉइल देते हो, तो वो सीड भले ही बंद है वहां से प्लांट जर्मिनेट हो सकता है। कोई बॉक्स रहे, अगर वो बक्सा खोल देंगे तो उसमें से जो भी चीजें हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं। कोई शेल है तो कोई शेल को आप खोल सकते हो, तोड़ सकते हो ताकि उसमें से रिलीज हो। तो आई वॉन्ट यू टू नाउ इमेजिन कि आपके हार्ट में एक शेप है, और वो शेप ऐसी चीज है जिसको आप खोल सकते हो या फिर आप उसको तोड़ सकते हो, या जो भी है उससे अंदर की चीजें बाहर निकाल सकते हो। यू कैन रिमूव वट एवर इज स्टोर्ड इन योर हार्ट। सो आई वॉन्ट यू टू सिलेक्ट वन शेप। ओके, सो आपको जैसे भी शेप लगता है, मुझे इनवेरिएबली मैं जब हार्ट चक्र पे करता हूँ तो मैं एक सीड को इमेजिन करता हूँ, बिकॉज एक सीड से आप पूरे फ्लावर मतलब पूरे ट्री को ग्रो कर सकते हो, फ्लावर्स को ग्रो कर सकते हो। एक छोटी सी चीज में इतनी पोटेंशियल है बड़ी होने की। तो एनी शेप जो आपको कनेक्ट होता है, आई वॉन्ट यू टू जस्ट रिमेंबर वन शेप एंड इमेजिन करना कि आपका हार्ट के वहां वो शेप प्रेजेंट है। यू कैन जस्ट इमेजिन दैट आपके हार्ट के वहां वो शेप प्रेजेंट है। फिर उसको नोटिस करिए, क्या आपको कोई कलर्स दिख रहे हैं, कोई शेप में टेक्सचर दिख रहा है, कोई रफनेस दिख रहा है, कुछ इरिटेशन हो रहा है। नोटिस वॉट एवर सेंसेस आर कमिंग। Once you have noticed, we are going to put this again onto the paper. Okay? For example, जैसे मैंने बोला एक सीड है, आप कोई भी चीज बना सकते हैं, आपको मुझे कॉपी नहीं करना है। आप सिर्फ एक बेसिक हार्ट भी बना सकते हो, क्लोज हार्ट, जो भी एक लॉक बना सकते हो, वट एवर यू फील कनेक्टेड टू आप कर सकते हो, बट इट शुड बी समथिंग दैट कैन बी ओपन। ओके, तो जैसे मैं अभी कलर ब्राउन लेके एक सीड बना रहा हूँ। आप कोई भी शेप, कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपको कनेक्टेड है, लेकिन वो शेप, उसको ऐसा शेप होना चाहिए कि वो उसको डेफिनेट बाउंड्री हो और उसके खोल सकते हैं। वी कैन ओपन दैट शेप। ओके, so I want all of you all to do this much. Then we will do a little bit of a meditation to allow our heart to open. कोई भी शेप बना सकते हैं। यस रूसी जी, चक्रा हीलिंग भी मैं आर्ट थेरेपी से ही करवा रहा हूँ। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आर, वी डू डिफरेंट प्रोग्राम्स बट दिस इज राइट नाउ जस्ट वर्किंग ऑन आर हार्ट चक्रा। ओके, टेक योर टाइम एवरीबडी एंड प्लीज मेक अ स्ट्रक्चर। कुछ भी हो सकता है, वट एवर यू फील इज ओके।
Sonal ji, are you watching? Can you just let me know in the comments on Facebook if it is playing or not playing? Any questions from anybody? किसी को कोई भी question है? हम लोग एक और मिनट लेंगे, then we are going to do a little bit of a meditation. Thank you, Sonal ji. ओके, सो मैं अभी ये पेपर थोड़ा वेट है, एक बार आपको सूख जाने में मैं दिखा देता हूँ. okay? जैसे हम लोग ने अभी तक इतना किया है, हम लोग ने पेपर को ऑरेंज और येलो से मैंने पेंट किया है, एंड आई हैव मेड अ सीड, ओके, अ ब्राउन सीड. सो यू कैन डू इट इन वॉट एवर वे यू फील कंफर्टेबल. थैंक यू प्रीति जी. If anyone has any questions, please feel free to ask. I'll be happy to answer. Okay. Once everybody is done with this much, I want all of you to sit comfortably. Okay. आपकी बैक को आप well rested रख सकते हो. See to it that your legs, hands are not crossed और spine आपकी straight है. Now we will start by taking a deep breath in through our nose and exhale through your mouth. One more time, inhale through your nose and exhale through your mouth. One more time, inhale through your nose and exhale through your mouth. And every time you inhale and exhale, you allow your body to relax further and further and further. We are now going to first relax our entire body in a very short meditation. पूरी बॉडी को रिलैक्स करने वाले हैं. अपनी सांसों पे ध्यान रखिए, सांसों को आने दीजिए, जाने दीजिए. जस्ट रिलैक्स, लेट थॉट्स कम एंड गो. ऐसे सांस अंदर लेते हैं और उन्हें छोड़ दें. Now I want you to imagine कि आपने जो भी कलर बैकग्राउंड में सोचा है, जो आपका हैप्पीनेस, जॉय का कलर है, वही लाइट की एक एनर्जी बॉल आपके सर के ऊपर है. There is an energy ball filled with that particular color of light of your happiness and joy. And now that happiness and joy is going to help you relax your entire body. यही लाइट से, यही कलर से हम पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे. सो इमेजिन करिए कि आपके सर के ऊपर एक ब्यूटीफुल कलर का बॉल है और धीरे धीरे वो बॉल से एक लाइट आपके हेड में एंटर हो रही है. इट इज एंटरिंग द टॉप ऑफ योर हेड, एंड एज इट एंटर्स द टॉप ऑफ योर हेड, ब्रिंग ऑल योर अटेंशन देयर. नोटिस एनी सेंसेशंस, एनी फीलिंग्स, एनी स्ट्रेस, एनी टेंशन. एंड जैसे वो लाइट वहां टच होती है, यू अलाउ योरसेल्फ टू रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. Now let that light enter into your forehead. जैसे वो आपके forehead में enter होती है, वहाँ पे जो भी टेंशन, जो भी स्ट्रेस, जो भी इरिटेशन है, you allow it to relax, relax, relax. Your body is becoming loose, limp and relaxed. Feel the air going in and coming out. Bring all your attention onto your eyes. जैसे वो लाइट आपकी आईज में आपको फील होने लगती है, your eyes get heavier and heavier and heavier, and you can feel this relaxation even in your eyes. Now let this light enter into your ears, into your cheeks, to your mouth. जैसे ये लाइट स्प्रेड होने लगती है आपके पूरे बॉडी में,
You feel more and more relaxed. Taking a deep breath in and exhale. Every time you exhale, you release of any negativity, any stress, और आपको और रिलैक्स लगने लगता है. आपकी बॉडी लूज लिम्प एंड रिलैक्स होने लगती है. लूज लिम्प एंड रिलैक्स, लूज लिम्प एंड रिलैक्स. नाउ फील दैट दिस लाइट is entering into your neck area, and जैसे it enters into your neck area, जो भी आपको नेक में स्टिफनेस लग रही थी, जो भी आपको नेक में टेंशन था, स्ट्रेस था, this light is able to remove all of it and you feel really comfortable, feeling really comfortable with every breath, allowing the breath to go in and come out, and the light to spread across your body. Pay all the attention onto your breath and onto the light, and if thoughts come, let them come and let them go. Just feel करिए ये रिलैक्सेशन को. जैसे ये रिलैक्सेशन स्प्रेड हो रहा है, it enters into your shoulders, and shoulders पे जो भी स्ट्रेस था, जो भी टेंशन था, you can now choose to release, release, release. Feel this wave of relaxation entering into your arms, into your forearms and your hands. आपके पूरे जो हाथ है, शोल्डर से लेके उंगलियों तक पूरे हाथ में रिलैक्सेशन महसूस करिए. Just feel this relaxation. Feel yourself with this color. जो भी कलर आपने सिलेक्ट किया है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होते जा रहा है. Now bring all your attention onto your chest. जैसे आप चेस्ट पे अटेंशन लाते हैं, आपको वही स्ट्रक्चर जो अभी आपने ड्रॉ किया है, मे बी वो एक ड्रॉप है, मे बी वो एक शेल है, मे बी वो एक सीड है, वही आपको दिख रहा है. एंड ये पूरी एक्सरसाइज में आपको यही सीड को, यही बॉक्स को खोलना है, रिलीज करना है एंड उसको हील करना है. So fill yourself with this beautiful yellow light or colored light, whatever color you have selected. Just fill yourself with that light and feel that your heart is relaxing. We will first relax the entire body and then we will come back to the heart. अभी यही रिलैक्सेशन को महसूस करिए कि आपके अब्डोमेन एरिया में, जहाँ पे आपके स्टमक, आपका लिवर, सब ऑर्गन्स रिलैक्स होते जा रहे हैं. Your skin is getting relaxed, your muscles are getting relaxed, your tissues are getting relaxed, and your entire body is getting loose, limp, and relaxed. Loose, limp, and relaxed. Loose, limp, and relaxed. सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़िए. जो भी थॉट्स आते हैं आने दीजिए और जाने दीजिए. जस्ट बी इन द मोमेंट एंड फिल योरसेल्फ विद दिस ब्यूटीफुल कलर. अभी यही कलर आपके बैक में स्प्रेड हो रहा है. पहले आपके अपर बैक में, मिडिल बैक में और लोअर बैक में. जैसे वो आपके बैक में स्प्रेड होता है, you feel more and more relaxed, more and more relaxed, and your entire body, the top of your head to your waist, is filled with this beautiful colored light, and it feels loose, limp, and relaxed. Loose, limp, and relaxed. Loose, limp, and relaxed. अभी यही कलर को इमेजिन करिए कि वो अभी आपके लोअर बॉडी में स्प्रेड हो रही है, आपके थाइज में, आपके बैक साइड में, आपके नीज में, आपके लेग्स में और आपकी फीट में. As this light enters your lower part of your body, your thighs, your backside, your knees, your calf muscles, and your fingers, your toes, they feel completely relaxed, and your entire body from the top of your head to the bottom of your feet is now filled with this color. ये पूरे कलर से आपकी बॉडी फिल्ड है और आपको बहुत रिलैक्स फील हो रहा है. बहुत रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड. अभी जैसे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, हम मन को शांत करते हैं.
I want you to imagine that happy moment again, जहाँ आपको बहुत अच्छा लग रहा था, जहाँ आपको बहुत बेटर लग रहा था. You are back in that moment, and I want you to see who is around you. आप कहाँ हैं? शायद कोई बीच है, कोई गार्डन है, आपका घर है. आपसे कौन बात कर रहा है? Who is talking to you? How are you feeling? रूम का टेम्परेचर क्या है? क्या आपको कोई स्मेल आ रही है? क्या आपको कोई टेस्ट आ रहा है? And with every thought that comes, with every memory, every sense that gets triggered, your mind feels 10 times more relaxed, 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 relaxed. आपकी बॉडी और आपका माइंड अभी पूरा रिलैक्स हो गया है. And now we have to come to our heart and we have to give healing to our heart. अभी आप bring all your attention onto your heart and वही स्ट्रक्चर को याद करें. ये स्ट्रक्चर है जहां आपको जो भी हर्ट हुआ था, all the negative emotions, anger, irritation, all of it is stored, and you want to release it and heal this particular area. So जैसे I said, the seed requires sunlight, it requires water, it requires the air, it requires the soil. अभी ask your heart, what does it require? आपके हार्ट को क्या चाहिए? Does it require love, family, friendship, understanding? शायद आपको कोई सिंबल्स दिखे, शायद कोई आपको वर्ड्स याद आए, शायद कोई और कलर दिखे. Ask your heart what does it want, and whatever it wants, उसको एक इमेज दीजिए, एक पिक्चर दीजिए, उसको वर्ड्स दीजिए, उसको शेप दीजिए, टेक्सचर दीजिए. What does your heart want so that it can open and be filled with love, with joy? What can you give it so that you feel really happy and healed? What will help you connect to your deepest emotion and your feeling so that your seed may bloom into a beautiful flower? It can be truth, it can be balance, it can be honesty, it can just be giving yourself some time to do your hobbies. जो भी रहे, all of it is okay. Now, whatever structure, whatever words, whatever shapes you have thought of, as I count from 1 to 5, I will bring you back to the moment, and you will use these shapes, colors, and words in order to help your seed, your structure, your drop, your box, जो भी रहेगा, उसको आपको खोलना है, आपको रिलीज करना है. सो उसको क्या लगेगा? शायद आपको कुछ लिखना है, आप लिख सकते हैं. उसके आजू बाजू में कुछ ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर सकते हैं. कोई कलर से आपको उसको तोड़ देना है, उस पर पूरा नया स्ट्रक्चर बनाना है, वो भी कर सकते हैं. जो भी आपको सही लगे, in order to make it from something small to something that will make you really happy and feel completely happy. 1, you are beginning to come back to consciousness. जैसे ही मैं ये 5 बोलूंगा, आप वापस यही मोमेंट पे आ जाएंगे, और 5 मिनट्स के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा. आप सिर्फ आपके आर्टवर्क को वो लव, वो राइटिंग, वो अंडरस्टैंडिंग देंगे. 2, जैसे मैं ये 2 बोल रहा हूँ, आपको और कॉन्शियसनेस कम वापस आ रही है. यू फीलिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ द सिचुएशन. 3, you can remember exactly what you want. Your intuition is telling you what you have to make, and it is okay, it is safe. यहाँ पे कोई judgment नहीं है. 4, you are ready to come back to consciousness, and when I say 5, you will come back and not saying anything, you will just work on the artwork and create something for yourself. आप लिख सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप कलर कर सकते हैं. And 5, come back to the moment, come back to the moment, come back. 5, come back to the moment and draw. Use 5 minutes to represent whatever you want onto the paper and create
a place which feels happy, which feels that will allow this to grow. आपको जो ड्रॉ करना है, आपको मन से जो भी आता है आपको ड्रॉ करना है, उसमें कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जो भी आपका बक्सा था बंद, उसे कैसे आप खोल सकते हैं। आपको एक चाबी बनाना है, आप चाबी से खोलिए, बक्से के अंदर क्या है वो देखिए। जैसे मुझे ये सीड को बहुत ग्रीन कलर की लाइट से ग्रो करना है। जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। आप लिख भी सकते हैं, यू कैन राइट डाउन, यू कैन ड्रॉ सिंबल्स, ओके। whatever comes to you, whatever feels connected to you, आप वो कर सकते हैं। and as you do it, I want you to pay attention to your heart। आपको क्या महसूस हो रहा है? what is it trying to tell you? और आपको रियलाइज होगा कि हर बार आप ये एक्सरसाइज करेंगे, एवरी टाइम आई डू दिस एक्सरसाइज कुछ नया बनता है। At this moment I want to give it a lot of green energy, so I'm giving it that green energy। आप देख सकते हैं इसमें कोई ब्यूटी की कुछ जरूरत नहीं है, जो भी आपको सही लगे आप बना सकते हैं। आपको मुझे कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू जस्ट इमेजिन दैट यू आर ओपनिंग योर हार्ट इन सम वे। तो आपको क्या लगेगा आपके हार्ट को ये रिलीज करने के। अगर आपको कोई डिवाइन पावर को बुलाना है, आप डिवाइन पावर को बुलाए, जो भी आपको लगता है आप कर सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक ये राइट है और ये रॉन्ग है। जो आपके इमोशंस फील हो रहे हैं आपको, आप वो कर सकते हैं। बट वाइल यू आर डूइंग इट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हार्ट एंड फील के वो खुल रहा है। आपको जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज होने लगी है, एंड यू आर गिविंग योरसेल्फ द परमिशन टू एक्सपीरियंस दैट। आप लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये ड्रॉ किया है, अभी मुझे लिखना है। आई कैन टेक एनी पेन एंड राइट डाउन सम वर्ड्स, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ आई नीड पीस, आई वॉन्ट हीलिंग। जो भी मुझे लगता है मैं लिख सकता हूँ। याद रखिए, आपको खुद के लिए जो वर्ड्स चाहिए वो लिख सकते हैं, जो खुद के लिए सिंबल्स आते हैं वो लिख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप रेडी हो, आपको पॉज होना है और आपको वापस यही पेंटिंग को देखना है, महसूस करना है। और जैसे हम बातें करते हैं, वी हैव टू टॉक टू आवर पेंटिंग कि आपको क्या चाहिए। दिस इज आवर सबकॉन्शियस माइंड स्पीकिंग टू अस। जब हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आवर सबकॉन्शियस माइंड विल गिव अस एन आंसर दैट दिस इज व्हाट इज नीडेड। शायद आपको कोई आइडिया आए, शायद आपको कोई इंसान याद आए, शायद आपको कोई मेमोरी याद आए। All of this is okay. We have to trust that our subconscious mind is connected to the higher forces, to the divine powers, and that is what is speaking to us through this artwork. जैसे ही ये हो जाए, सिर्फ अपने आर्टवर्क को देखिए, 2 मिनट देखिए, आंख बंद करिए और वापस अपने हार्ट से कनेक्ट होइए। कनेक्ट टू योर हार्ट अगेन एंड आस्क योर सेल्फ हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अभी कैसा महसूस हो रहा है और क्या चाहिए।
Thank you Anupama Singh ji. Thank you Sunil ji. Okay. I hope all of you were able to experience. So this is what I have created. थोड़ा wet है इसके लिए मैं पेपर के ऊपर नहीं ले सकता. But this is how we have created for today. जैसे एक I have done the similar exercise. तो पहले थोड़े दिनों पहले मैंने ये बनाया. Okay, as you can see, every time the seed also takes a different shape. Okay, so different words. I've done the same exercise just a few days ago with another batch. So हर बार I also whatever I am experiencing, I allow that to happen at that stage of time. So इसमें यही है कि we have to allow ourselves to experience whatever is happening without judgment कि ये क्यों मुझे हो रहा है, ये नहीं पूछना है. हाँ मुझे ये हो रहा है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? What can I experience? Thank you Goody ji. So we'll let everybody take 2 more minutes and then we'll just listen to some people. If you all have any suggestions, any feedback or anything, your questions, I'll be happy to answer. Thank you, Preeti. You made a dolphin, that is completely fine. Whatever you feel connected to, मैंने यही बोला, इसमें कोई right और wrong का सवाल ही नहीं आता. जो भी आपको connected हो रहा है, because हर इंसान को हर चीज अलग पड़ेगी. Today's session was art therapy for the heart. Okay, we did art therapy for the heart. Okay, ये सिर्फ एक introductory session था, just to experience कि art कितना powerful हो सकता है, even by doing simple things. Thank you Lily ji, thank you Preeti ji, thank you Manisha ji, thank you so much Aura ji, thank you so much everybody. You all are very kind. For heart means for heart element, for heart chakra. So it can be your emotions. Today we are working on the emotions stored in the heart. It will, if emotions are healed, physical changes automatically happen because sorry. So the moment our aura changes, that time automatically we start seeing changes. Thank you Bhumika ji, thank you Sonal ji, thank you Anupama ji. So anybody wants to share thoda kuch bhi, if anybody wants to share, we'll be happy to take some questions or some feedback from anybody. Thank you Jagruti ji. I hope, first of all, thank you Pradeep sir, thank you Tarun sir, Geetu ma'am, thank you for blessing Healing Up, for giving me this opportunity. I think it's the first session that we have started with Blessings talk show, so thank you for giving me this chance. Thank you Bhumika ji. Any questions from anybody? किसी को कुछ भी पूछना है तो मैं definitely आंसर कर सकता हूँ, या फिर आपको कुछ ओपिनियन शेयर करना है, जैसे आपने कुछ बनाया और आपको फिर या ऐसा महसूस हुआ कि ये चेंज करना था. Anything you want to explain, share also would be very good. Thank you Sonal ji. Thank you Rashmi ji. Thank you Preeti ji. Thank you so much everybody. Thank you Pransh ji. Feeling peaceful and happiness, yes, that is the objective of today's session. We should feel happy after finishing this session. Anybody discovered something? Maybe some words came. Why kids? The question: why kids love so much drawing and colors? Because kids, if you all know, up to 7 years, the conscious mind is not active. Only subconscious mind is active. So for them, everything is going directly into a subconscious mind. That is why when they want to express, so it is very easy for them to express through any medium of drawing and colors, because that is what they see. Video मिलेगा कि नहीं? It will be there on Facebook posted, so you can check on the Facebook page. I think sir will also post on YouTube. Thank you everybody. A pen for yes. Yes. Yes, thank you so much for amazing session. बहुत ही अच्छा था. एक क्वेश्चन आया है सब कुछ होने के बाद, जो मैंने इमेजिन किया था, वहाँ पे कहीं पे भी बर्ड नहीं थी. अगर आप मेरा आर्ट देखोगे उसमें मैंने एक बर्ड बनाई है यहाँ पे. अब मुझे नहीं पता, मैं एक मिनट पिन करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं दिखेगा ऐसे. एक मिनट. हाँ बोलिए. मुझे नहीं पता मैंने ये बर्ड क्यों बनाई है, लेकिन
ओके, सो इसका क्यों का जवाब मैं नॉर्मली ग्रुप सेशंस में नहीं बताता हूँ, because then lot of people misinterpret it, because everybody has a different symbol for what they represent. Okay, usually birds represent most of the times the ability to move forward, freedom, escape. Okay, but I will not discuss this. If you want, you can personally, we can talk later on. ये why this particular small bird has come with small wings on the side. आप देखोगे तो wings भी बहुत छोटी है. So as an art therapist we notice all these things. मतलब कि बर्ड तो ठीक है, लेकिन बर्ड बनाया कहाँ है, कैसे बनाया है, और उसमें कैसे फीचर्स दिखाए हैं. आपको इतना बड़े स्ट्रक्चर में बाहर जा रहा है पूरा, तो वो क्यों इतना छोटा है. ऑल ऑफ दिस वी स्टार्ट नोटिसिंग एंड वी डिस्कस विद द क्लाइंट ऑन हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू यू. तो वहां से हमको समझता है कि एक्चुअली आपको जो ब्लॉक है वो कहाँ से आ रहा है. ओके ओके ओके, गुड्डी जी, थैंक यू। you want to share, Goody ji? Let me just spotlight you then, because I cannot see everybody else. Goody ji, आपको थोड़ा zoom out करना पड़ेगा. I can't see. Wow. Just a question: is it a fish that you wanted to show? Goody ji, आपका mute पे है कि? I think mute पे है. एक मिनट. हाँ, okay. So जैसे fish normally again shows a lot of momentum and opposing other things and moving forward against the current. कि आपकी fish एकदम vertically ऊपर जा रही है, which is a sign that you want to grow forward. Okay, पीछे भी इतना movement दिख रहा है, लेकिन जो colors use किए हैं वो काफी muddy colors है. Okay, so often that could represent that you know that you want to move forward, लेकिन वो clear water नहीं आ रहा है, आपको काफी सारे हलचल से जाना पड़ रहा है. मतलब या फिर आपको एग्जैक्ट चीज नहीं पता कि आपको कहाँ जाए. एकदम ऊपर ब्लू में दिख रहा है, आपको दिख रहा है एकदम ब्लू ऊपर है, लेकिन बीच में पूरा ब्राउनिश है. सो दैट मीन्स दैट पाथवे इज फॉरवर्ड. Just let me know if it makes some sense to you, because I cannot interpret for everybody detail में here. But अगर आपको कुछ sense connect हुआ तो very true. Thank you, thank you. So this is what I'm just doing very quick interpretations, because I have experience के लाइव में करने पे लोगों को काफी ये हो जाता है, थोड़ा embarrassment भी हो जाता है. One more person, if you want to show, we'll take. Yes, Lucy ji, you have a question? आपको अनुभव ये अनम्यूट कर दीजिए. Thank you, Goody ji, for confirming. So जैसे हम लोग ग्राफोलॉजी में कैसे समझते हैं कि एक एक वर्ड, एक एक लेटर क्या क्या हो सकता है, आर्ट थेरेपी में ये थोड़े कॉमन सिंबल्स रहते हैं, बट उसके मीनिंग्स हर इंसान को अलग रह सकते हैं. सो वी नोटिस हाउ सर्टेन सिंबल्स कुड मीन, देन वी हैव टू आस्क द क्लाइंट कि आपको ये था कि नहीं था. बिकॉज इफ मैं आपको अज्यूम कर लूँ तो इट मे नॉट नेसेसरली बी ट्रू फॉर दैट पर्सन. ओके, टू मोर हैंड्स अप, लेट मी जस्ट चेक. उल्टा आ रहा है, आई कैन नॉट सी. उल्टा आ रहा है. लूसी जी, उल्टा आ रहा है, उल्टा मतलब इट्स इन्वर्टेड फॉर मी. हाँ, ओके. क्या देखो, फोर्थ कंपैशन, ट्रूथ, ट्रू फ्रेंडशिप, पीस, और एक बक्सा बनाया है. ओके, उसके बाद राजेश्वरी जी, we have to speak to sir. Actually, I know how to do, but the problem is that it's as a certification. I am not a government body, so I have to ask sir if we can do that. हाँ, बक्सा मेरे को दिख रहा है, ब्राउन कलर का बक्सा है, 2 लॉक भी एकदम क्लियरली आपने ड्रॉ किए और एक की बनाया. उसके बाद मुझे दिख नहीं रहा, एक्चुअली बहुत अनक्लियर वीडियो है. न्यू न्यू ट्रेनिंग ऑन हॉबीज. लूसी, जब थोड़ा जूम आउट करेंगे तो शायद मुझे दिखेगा. बहुत ही जूम्ड इन है, कुछ भी नहीं दिख रहा है.
ठीक है, आप एडजस्ट कर लीजिए, तब तक किसी और को क्वेश्चन रहेगा तो मैं पूछ लेता हूँ. One more person, okay? Then we take one more person. कि already 6 बज गए. I don't want to extend to anybody. Anybody wants to share? Sir, what is the meaning of water drop? Can you show your artwork? I'll understand exactly what you are drawn, because water drop के shapes पे भी बहुत dependent रहता है. I just imagine not properly Hello? drawn the pictures. Okay, so I mean, I'm just giving you one of the, because I have not seen the work, so I cannot tell you where. But water drops could mean various things. One thing, water drop usually would represent a tear more than anything. Okay, जैसे अगर अंदर के आंसू रह गए, वो जब रिलीज करना है, तो that is usually one of the most common representations of what it could be. But unless I see the work, मुझे बहुत difficult है आपको ये interpret करना. Okay, sir. So every symbol can have multiple meanings. Okay, तो वही context में क्या meaning है, वो client के साथ ही हम लोग को बैठ के समझना पड़ता है. You may estimate symbols, so if you're connected to symbols, that's completely fine. Like I draw a lot of symbols in my artwork. Yes, Chandan ji, you have a question? आप अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है सबका. Hello? Yes. So this is what I have done. With me, my son was doing he speak. Okay. So see, what have I done? Actually, I want to know what my son is doing. So he 6 years back, he cannot speak. So he was with me and he have done this. Chandan ji, I think there's some network issue at your side. Can you see? This was the artwork done by my son, and he cannot speak. Your was son with cannot me. speak. Is that what I'm Yeah. hearing correctly? Your son cannot speak, and he has drawn this. Yeah, he was with me in the session. How old is your son? 6 years. 6 years. मत Okay. करो. So for children especially, I do not want to discuss on the group. Maybe I'll ask sir and we can have a private session if that's possible. Okay, thank you. But you should see how He's showing everything is. I'll just tell you yeah. something. Everything is on one side. If you see, his entire drawing is unbalanced. So there's a lot of work which is there happening on one Okay. side of the paper, but it is not happening on one side. So a lot of his feelings get stuck. That is why he feels that somebody is listening. Otherwise, he's getting left out in a lot of places. Like maybe even in Okay. events, he's getting left out very often. So he has to hide in one corner. Okay. Okay. Thank you. So I will be, sir, keep connect with you. Actually, Yes, I'll he speak to cannot- sir first. We'll have to speak to sir and then we will take care of Oh, how okay. to. Yeah, okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, Rajeshwari ji, for school children also it can be used, but that is what is the so basically art therapy sessions are always indicated to have some directive. Directive means some objective on what is the session for. Okay, we just don't randomly decide कि आज paper pen दे दिया and आप करते रहो. That is just used to calm the people down. But if you have to do an art therapy session, तो उसमें बहुत important है कि आपका एक objective होना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आज बात करनी है. जैसे अगर कोई lot of abuse cases खास करके, okay, there is lot of abuse cases जो रहते हैं, आर्ट थेरेपी से काफी टाइम वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हाँ ये चाइल्ड को कुछ हुआ है शायद से, या फिर उनको मारपीट हुई है, या फिर वो फैमिली में इश्यूज है. So all this, especially from art therapy, a lot of things can be understood. Okay, so for children especially, more than therapy, it is to understand, because over time it will work as therapy. They don't have the understanding only कि ये क्या problem हुआ है. They just understand कि it is a negative situation which is stuck in their body. So they feel the energy. So they feel that something is going wrong, but they are not able to understand only what is going wrong. So through art therapy, we can discover all of that. Thank you, Janvi. Hello, sir. Thank you for this opportunity, sir.
बोल. Hello, Yes, yes. sir. I have just used paper and pen. Just show my picture. Okay. So you have drawn one box, you have drawn one heart, and then 3 hearts on the side. Yeah. Okay. I just want to ask you 2 questions. Okay. Did you have this heart in the first part, and then the 3 hearts came later on, or what is it? First part is one heart. Big heart is in first part. How old are you, Amiji? 56 years old. How many children you have? I have 2 children. Okay. And anybody else in your family, like besides your children? Yeah. Who else is there? Somebody you care about. Pardon? Anybody you care about who is there in your family besides your children? Somebody smaller than you, but Somebody? smaller. ગુજરાતી છો તમે? હા. તમારાથી નાનું કોઈ છે જે ઘરમાં, એટલે છે 3 વ્યક્તિ છે તમારા લાઈફમાં જે હા. આવવાથી તમને એવું લાગ્યું કે એટલીસ્ટ મારા લાઈફમાં થોડું કંઈક સારું થયું, એવી રીતે છે. એટલે તમારો આર્ટવર્ક છે ને બહુ ખાલી છે. તમે જો તો કોઈ કલર નથી એમાં. હા. હા. ઇવન તો તમે પેનથી કરી શકતા તો તમારું ખાલી છે. પણ 3 હાર્ટ્સ છે જે તમે પછી ડ્રો કર્યા છે. એટલે જે તમને જોઈએ છે કે તમારી અંદર આવે પણ આવી નથી રહ્યા, અને એ પણ નાના નાના બનાવ્યા છે. એટલે તમારાથી એ નાના હશે. મતલબ મેં પૂછ્યું કે તમને કેટલા છોકરાઓ છે, તો કોઈક વાર છોકરું 2 હોય પણ કોઈ ત્રીજું બી વ્યક્તિ હોઈ શકે છે. એવી રીતે આ તમારું આર્ટ. One is daughter-in-law. હા, તો 3 નાના લોકો, 3 જે તમારે એ લોકો 3 ને એકબીજા જોડે બહુ ફાવે છે, પણ એ લોકોને તમે જોઈએ છે કે તમારા લાઈફમાં બી એકલા જ ઇન્વોલ્વ હોય. હા. બરાબર છે? એટલે એવું છે તમારું ઇન્ટરપ્રિટેશન. હા. I am just repeating for others. So basically she has drawn a heart which is big and empty. I'll repeat it because I said it in Gujarati. And then she has drawn 3 hearts which are small and on the side away from her. So normally we would see a lot of color, but there is no color. It is one line only. So it basically represents that there are 3 people in her life who are smaller than her, younger than her in some way. And she wants them in her heart, but they have not been able to come. So there is a lot of unity amongst those 3 people, but there is a distance between her and those 3 people. Okay, so this is just an interpretation. Of course, we have to go in much more depth. Okay. બરાબર છે? તમે સમજાવો? Perfect. Thank you so much. All right, I think that's enough. हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं हमें जी. जानवी जी, मैं उनका सिर्फ एक बार दिखा देता हूँ तो आपको समझ आएगा. मैं हिंदी में भी बोल लेता हूँ एक बार. अमी जी के आप एक बार दिखा देंगे वापस? अमी जी एक पाछो ओलो वीडियो पर ले आवशो जरा 1 मिनिट. ओलो पाछो वीडियो पर ले आवशो जरा आर्टवर्क ने. ओके, मैं सिर्फ एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि लोगों ने पूछा. तो उनके पास कलर्स नहीं थे, लेकिन उनके पास एक पेन तो था. अभी उन्होंने बॉक्स बनाया, एक हार्ट बनाया जो बीच में था, जो हम लोग ने पहले बनाया था. फिर मेडिटेशन के बाद उन्होंने ये 3 हार्ट बनाए. अभी ये 3 हार्ट आप देखोगे तो काफी छोटे हैं. ओके, एंड वो तीनों हार्ट एक दूसरे को एकदम स्टक है, लेकिन उनसे काफी दूर है. तो उन्होंने वो हार्ट अंदर नहीं लाए, वो हार्ट दूर रहे. तो मतलब शी वांटेड दोस पीपल, मतलब ये जो 3 है वो 3 उनसे छोटे रहेंगे मोस्टली. तो अभी उन्होंने बोला कि उनके बेटे, उनकी बहू और उनकी बेटी, वो 3 लोग हैं जो 2 बेटे और 2 बेटे और एक बहू. तो वो 3 उनको चाहिए कि उनके साथ वो कनेक्टेड रहे ताकि उनका अच्छा फीलिंग हो, लेकिन वो नहीं है. तो ये उनके आर्टवर्क से मुझे समझा. अभी मुझे तो नहीं पता था उनके बारे में कुछ, लेकिन इसलिए मैंने ये आर्टवर्क से ये समझा. ओके, वाओ, सुपर अमेजिंग जी. वो रेजोनेट हो रहा है ना उनके साथ? हाँ, उनको वही बोला ना, उन्होंने वही बोला. वाह, कांग्रेस. थैंक यू सर अगेन. सभी आई थिंक बहुत सारे हो गए सर. ठीक है ना, 5 मिनट और लीजिए ना, इनको आराम मिला तो करने दीजिए. चंदन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? चंदन जी आपको? चंदन जी और क्वेश्चन है. उनका बेटे का है, लेकिन उनका बेटे का चंदन जी आपके बेटे का आया था. आप एक काम कीजिए ना,
अपन लोग सेशन रखते हैं उसका 2-3 दिन ये हो जाना चाहिए। अपन सेशन भी इसी ग्रुप में ही चलाते हैं 5 to 6। ओके सर। इसी में ही हम अरेंज करते हैं। ओके सर। तो कभी वो बोला भी है कि कभी नहीं बोला है? सर ये अभी 1-2 बार मम्मी पापा ये मतलब हम लोग का आसामीज में बोलता है, माँ देवता ये बोलता है। तो ऐसा लेट बोलता है, लेकिन लर्निंग से उसकी कि कुछ बाकी लर्निंग्स पे सब ओके हैं, खाली स्पीच में प्रॉब्लम आ रहा है। खाली स्पीच में वो मतलब स्कूल अभी जा रहा है, स्कूल जाने से वो अभी पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा कर रहा है, ABCD ये सब लिखना आता है उसको, काउंटिंग थोड़ा सा आता है, मतलब लिख सकता है वो। बाकी सर सब कुछ कर लेता है ये, मतलब उसको लैपटॉप भी चलाना आता है, कैमरा भी चलाना आता है, वो सब कुछ कर लेता है। आपने लेकिन किसी स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाया है? सर मैं ये लेके गया था उनको, मैसूर लेके गया था, Okay. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, वहां लेके गया था, तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है बोला वहां पे। अपन सर एक मैं क्वेश्चन से चंदन जी, उनको बेड वेटिंग का इशू है क्या आपके बेटे को? बेड वेटिंग पहले था, लेकिन जब से हम लोग ने ये हीलिंग स्टार्ट किया वो अभी नियर अबाउट मोर देन 8 months नहीं है। सर मतलब उनके आर्टवर्क से बहुत पास्ट फियर दिख रहा है वो बच्चे के उसमें से, तो इसके लिए। ओके ठीक है ना, अपन इसका सेशन रखते हैं, इसी क्लास में लेंगे। जनरली हमने ये क्लास क्यों स्टार्ट करी है, नई नई थेरेपीज को समझने के लिए। जैसे कि आज अमेय जी ने आपको बहुत ही अच्छा आर्ट थेरेपी बताया। हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं लाइफ के, पास्ट लाइफ के, सोल लाइफ के, सारे परसेप्शंस के थ्रू स्टोर्ड होते हैं, और हम 75% अपनी परसेप्शंस विजुअल्स में क्रिएट करते हैं। और विजुअल्स प्लेन क्रिएट नहीं करते हैं, उसके साथ कोई ना कोई कलर अटैच करते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो कलर्स डिफरेंट थॉट की फ्रीक्वेंसीज कलर्स फ्रीक्वेंसीज के अनुसार ही माइंड में होती है। जैसे कि सर ने अभी आपको ट्रेन करा कि जॉय का एक कलर होगा, आपके सैडनेस का कोई कलर होगा, आपका ग्रिफ्स का कोई कलर होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, जो कि सबकी परसेप्शन अलग होगी। किसी के लिए येलो बहुत जॉय का कलर होगा, तो किसी के लिए येलो ग्रिफ का कलर होगा। तो सबके लिए डिफरेंट कलर्स होंगे, डिफरेंट परसेप्शंस होंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है। और ये बैच हमने चलाई इसीलिए, डेली न्यू स्पीकर्स, फिर से हम अमेय जी को फिर लेकर आएंगे, बार बार उनके टॉक्स आपके सामने लेकर आएंगे। तो डेली न्यू सेशंस होंगे, डेली न्यू लर्निंग्स होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि लर्निंग्स कभी एंड नहीं हो सकती। मैं 30 इयर्स हो गए इस लाइन में, और हर बार मैं देखता हूँ कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जितना नया सीखने को मिलता है उतना मैं रिफाइन होता रहता हूँ, उतना आप लोग रिफाइन हो सकते हैं। औरों को भी जोड़िए, जो लोग थेरेपीज के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी लेकर आइए, तो उनको इम्पोर्टेंस पता पड़ेगी कि थेरेपीज होती क्या है। जनरली ये प्लेटफॉर्म हमने रेज क्यों करा है, एक अवेयरनेस के लिए, कि लोग थेरेपीज के प्रति अवेयर हो। आज आपकी लाइफ चेंज हुई है, आप लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, ऐसे और भी लोग, हमें बहुत सारे लोग चाहिए। इतनी पब्लिक है कि अपन सब तक नहीं पहुंच सकते हैं। जितने हीलर्स है 0.01% भी हीलर्स नहीं है। तो अपने को थेरेपीज को अवेयर करने के लिए अपन ने ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करा है। आप लोगों के पास कोई टॉपिक हो थेरेपीज के लिए, और आप लोगों को अवेयर करना चाहते हो अपने किसी थेरेपी के लिए, तो आप भी मोस्ट वेलकम है। अपनी थेरेपी और कुछ ब्रीफ उसके लिए कि आप उस पर क्या बोलेंगे वो बताएंगे, तो हम आप लोगों को भी स्पॉन्सर करते रहेंगे यहाँ पे। प्रीति जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग सर। सर ये हम लिंक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ? हाँ, लिंक शेयर कर सकते हैं आप। फेसबुक ग्रुप पे लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्टली ये फेसबुक लाइव चलाएंगे अपन, फेसबुक ग्रुप पे ही सब करेंगे अपन, फेसबुक लाइव चलाएंगे। पर लोग अभी तक फेसबुक पे पूरे ज्वाइन नहीं हुए, इसलिए हमने जूम लिंक दिया है। हम चलाएंगे फेसबुक लाइव पे ही चलाएंगे। थैंक यू सर। मोस्टली उस ग्रुप में ले आएंगे, और डेली न्यू स्पीकर्स होंगे, न्यू थेरेपीज होंगी। कल प्राणिक हीलिंग के बारे में, प्राणास कैसे यूज कर सकते हैं आप हीलिंग में, उसके लिए सेशन है। परसों वास्तु का सेशन है। ऐसे डेली न्यू स्पीकर्स आप लोगों के सामने आएंगे, न्यू नॉलेज आएगी, और आपके एड ऑन्स होते रहेंगे। थैंक यू सर। होप कि आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय करा होगा। नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। कलर्स के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो होप कि आपको बहुत एंजॉय करा होगा। हम सेशंस भी प्रोवाइड कराएंगे। अमेय जी को
आगे हम सेशंस के लिए भी कन्विंस करेंगे कि यहाँ पे सेशंस आपके लिए जाए 1 बाय 1। ऐसे नहीं कि बहुत सारे सेशन 1 बाय 1 हम ऐसे अरेंज करते रहेंगे बार बार, तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे हैं यहाँ पे। और अपन फर्स्ट को रखेंगे चंदन जी आपके बेटे का ट्रीटमेंट, अपन ट्रीटमेंट्स भी यहाँ पे करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स, क्योंकि लोगों को अवेयर करना है हमें। ओके सर, ओके सर। ठीक है ना, तो अपन बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अपन यहाँ पे भी करेंगे, थेरेपीज भी यहाँ पे करेंगे, तो लोगों को लाइव मालूम पड़ेगी थेरेपीज कैसे होती है। जैसे अम्मे जी ने अभी कुछ चेंज ला के दिखाया आपको कि कैसे चेंज आता है आर्ट के थ्रू, तो हम ऐसे थेरेपीज भी यहाँ पे करेंगे। अगर आप लोगों के पास पेशेंट्स हो, अगर आप थेरेपीज करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर आकर थेरेपीज भी कीजिए। चंदन जी हम फर्स्ट को 5 से 6 उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। वॉइस तो समझ जाता है, हिंदी समझ जाता है वो? हिंदी समझ लेता है थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक, थोड़ा बहुत ही चाहिए। ठीक, अंकिता जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? Sir, can I ask a question? हाँ अंकिता जी बताइए ना क्या कहना चाह रहे हैं? Hello? अंकिता जी आप आउट ऑफ नेटवर्क हो गई है। अंकिता जी ठीक है ना, आज की क्लास यही फिनिश करते हैं, फिर अपन कल मिलते हैं सेम टाइम 5 o'clock with a new session of energy healing. Good day to all. Good day. Thank you, sir. Thank you for everything. Thank you, sir. Thank you, Ameji. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Amiji. Thank you, Thank you, everybody. sir. Thank you, sir. Ameji. Thank you, everyone.